What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 16th of March, and on Friday, the markets actually saw some sort of a panic selling. Markets 23,500 के नीचे open हुआ and throughout the day there was some sort of a selling pressure and Friday का close almost day low के आसपास end हुआ, which was somewhere around 23,100. So markets going into the weekend almost closing at the day's low is not always a great thing for bulls because that increases the probability of markets opening with a gap down once the market opens on Monday. But fortunately, there was no further negative news on the global front, so we opened flat today. 23,100 के आसपास open हुए, but within the first 45 minutes itself, we broke the 23,000 level. But the moment 23,000 was breached, the moment the market started trading around 22,950 levels, there was a sudden buying pressure which took the markets from 22,950 to 23,200. From there, the markets went into 1 hour of consolidation, but again post 2 o'clock, there was a second bout of buying and that shot up the markets almost till 23,500. And as I'm speaking, the time is around 3:15. There is almost 15 minutes to the market's close and the markets are hovering somewhere around 23,450 levels and the straddle is trading at 310. So for comparison, last week the straddle was trading at 350 and this week the straddle is trading at 300, which means to say that the markets are pricing the overnight risk lower and lower as the days elapse. And one more important thing is when the markets broke 24,000 levels and when we made a low of 23,700, the India VIX was trading at almost 25. But today the markets broke 23,000 levels, almost 1,000 points uske niche trade kar rahe the. But even after that, the VIX is somewhere around 22, which means to say that there is some sort of a divergence between what the price is saying and what the option premiums, basically the volatility, is saying. So today we saw a decently green candle, almost day low से almost एक 500 point का एक spike देखने को मिला है. But again, because of the kind of geopolitical tension we are in, there is no certainty where the price action might take us. So one has to be always careful if you have overnight positions. So we have straddle closing around 300, which means that tomorrow most probably the straddles will be opening sub 200 for Nifty's expiry. So let's get to the terminal and let's see क्या trade opportunities हम spot कर सकते हैं. All right. मार्केट्स को 23,000 के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग पावर मिला है, मोस्टली फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, एंड दैट हैज़ मेड द मार्केट्स टू ट्रेड अबव ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स फ्रॉम द डेज लो. बट अगेन, whether this is a dead cat bounce or whether this is a genuine bottom, time has to tell, because at this point there is no point in actually calling the bottom, because यहाँ पे भी markets ऐसे दिखा रहा था कि yes, यहाँ पे markets ने एक low बना के markets ऊपर गया, and once we got a very good trade deal का news, we were almost trading about 26,000 levels, and from 26,300 levels to 22,900 levels we have come a long way. And you can notice that how the price action has become like very broken kind of a price action. Gap down open हो के markets प्लस में क्लोज कर रहा है, कभी गैप अप ओपन होकर मार्केट्स नेगेटिव में क्लोज हो रहा है. सो वेरी हार्ड फॉर द पोजिशनल ट्रेडर्स टू एक्चुअली फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस. एंड हमको लग रहा होगा कि लाइक द प्रीमियम्स आर गुड, द वॉलिटिलिटी इज गुड, बट सो इज़ द रियलाइज्ड वॉलिटिलिटी. यू कैन नोटिस दैट हमको 500 रुपीज़ का स्ट्रैडल क्लोज ज़रूर मिला था on Friday, but you can notice that market का जो intraday range ही 500 से ज़्यादा points है. तो this 500 points is 250 rupees का call and 250 rupees का put, but today the markets made a one-way move of 500 points from the day's low. So it's not such an easy outing, both for the option writers as well as the option buyers. Option buyers के लिए प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ज़्यादा मूव करेगा, बट उसके बाद डे एंड के आसपास अगर मार्केट मीन रिवर्ट कर देगा तो दे वुड बी गिविंग अप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर प्रॉफिट्स एंड दे वुड बी कमिंग बैक इन टू द रेड जोन. बट एट द सेम टाइम फॉर द ऑप्शन राइटर्स द realized volatility is quite high. I think it's much higher than what the markets are implying. So they are also not able to make money if one is purely delta neutral. But again, अगर आप price action के हिसाब से trade करते हैं तो then definitely the markets will give you multiple opportunities throughout the trading day. Have a lot of conviction on the price action when the market itself is being thrown around like a penny stock because of the global news flow. Lower time frame पे बात करेंगे तो yes, we broke 23,000 levels and there was a bit of panic. Even वहाँ पे India VIX भी थोड़ा बहुत ग्रीन में ट्रेड करना शुरू किया, बट वंस दिस कैंडल स्टार्टेड प्रिंटिंग, ये जो यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न फॉर्म हुआ और यहाँ पे ये जो दो कैंडल का कॉम्बिनेशन फॉर्म होना शुरू हो गया, देन इवन वी सॉ अ गुड क्रश इन द इंडिया विक्स. ऑप्शन प्रीमियम्स भी
क्रैश होना शुरू कर दिया है. बिकॉज इफ 23,000 लेवल वॉज ब्रीचिंग एंड इफ दिस वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ गिवन थिंग, देन देयर शुड बी पैनिक ऑल अक्रॉस द टर्म स्ट्रक्चर्स. मतलब इस हफ्ते का भी ऑप्शन प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पाइक देखने को मिलना चाहिए था एंड अगले वीक का कॉन्ट्रैक्ट में भी स्पाइक देखने को मिलना चाहिए था, बट ऐसे नहीं हुआ. इफ यू नोटिस, let me go to the straddle chart. If you notice, when that down move happened, when that 23,000 breach happened, there was actually no such response from the option premiums. यहाँ पे ज़्यादातर 370 के आसपास गए, 340 से 370 तक, almost just 30 point of spike, especially on a 1DT. But to give some sort of a follow through, then I would be expecting this 370 का straddle to spike up till 400, 410 के आसपास hover कर जाना चाहिए था. But after that, once the market starts recovering, there was a steady crush in the straddle premiums, almost 370 से लेके now we are closing at almost 300. So which makes me think that for tomorrow's expiry, we'll be again getting the straddle open below 200. and अगर 150 के अगर नीचे अगर straddle ट्रेड करना शुरू करता है बिफोर 9:30, देन द शॉर्ट वॉल एंड शॉर्ट गामा ट्रेड्स वुड बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस. बिकॉज मार्केट्स में आप देख सकते हैं कि विद इन 5 मिनट, दीज आर 5 मिनट कैंडल्स, राइट? तो 5 मिनट में 100-150 पॉइंट का मूव डेफिनेटली आ रहा है. एंड स्पेशली व्हेन द ऑप्शन प्रीमियम का जो बेस है अगर वो कम रहता है, then definitely expect a lot of gamma moves in tomorrow's expiry. Because the previous Sensex expiry, though it was hard, but it was not as hard as the previous two Sensex and Nifty's expiry. So tomorrow expect some sort of a morning madness, expect some sort of a morning volatility. So अगर price action based अगर trades की बात करें तो yes, of course we have a wide range. ये जो 500 points का एक days का range बना है, and definitely इसके basis पे हम लोग कल के ट्रेडिंग प्लान नहीं कर सकते. बिकॉज अगर यहाँ पे इतना वाइड रेंज का अगर प्लान करेंगे तो मार्केट कहाँ पे ओपन होगा उसके बेसिस पे मैक्सिमम जो हमारा 2 out of 3 सिनेरियोज जो है वो आएगा ही नहीं. सो we can notice that as the markets are closing, we are almost correcting almost 150 points from the day's high. So which means that 23,500 level will be acting some sort of a local maxima, provided we start opening and start trading around 23,300 levels. So कल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि 200 rupees will be the tomorrow straddle open. So if market opens at 23,300 level, so 23,300 straddlers, even if they build their positions within the first 5 minutes, they'll get 23,500 as their break-even point on the upside and 23,100 as their break-even point on the downside. So this becomes some sort of a logical range, 23,100 and 23,500 for the 23,300 straddlers. But of course इतना आसान नहीं रहने वाला है 23,300 straddle को भी होल्ड करने के लिए. आपके पास ज़्यादातर डेयरिंग करना चाहिए, because at one point the call would be trading at 100 and the put would be trading at 100 when you initiate, but then at one point the call would be trading at 200 and the put would be trading at 20. So you have to hold on to this kind of a premium if you want to trade purely price action kind of a thing. But अगर आपको थोड़ा MTM basis पे आप adjust करोगे, then definitely there is a very high chance that you will get chopped. कल के लिए मैं ये decide करके चलता हूँ कि अगर markets 23 इसके नीचे, like जहाँ पे आज close हो रहा है, that is we have another 9 minutes of market action, तो अगर market 350 के आसपास close होगा and if we start trading around 23,300 levels, then अगर मेरे पास 200 रुपीज का स्ट्रैडल प्रीमियम है तो देन आई वांट टू ट्रेड 23,300 स्ट्रैडल विथ दिस एंड दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लोर एंड सीलिंग. डेफिनेटली यहाँ पे मार्क टू मार्केट डेफिनेटली बहुत ज्यादा वेरिएंस हमको मिलने वाला है. सो हाउ डू यू कंट्रोल दिस वेरिएंस? बाय मैनेजिंग योर पोजिशन साइज. सो सिर्फ 15% या 20% के आपका रेगुलर साइज से अगर आप 23,300 स्ट्रैडल आप ट्रेड करोगे, देन यू विल बी एबल टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैडल टिल दिस लॉजिकल प्राइस एक्शन पॉइंट्स आर ब्रीच्ड. बट अगर आपको थोड़ा साइज ट्रेड करना है तो देन डेफिनेटली यू हैव टू मूव स्लाइटली आउट ऑफ द मनी. बट स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो गामा का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है एंड साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो जो ऑप्शंस का जो बिहेवियर है एंड आपका जो मार्क टू मार्केट का बिहेवियर है वो काफ़ी इंटेंस होता जाएगा. सो अगर मार्केट 350-300 के आसपास अगर ओपन होता है तो देन 23,300 स्ट्रैडल वुड बी माई प्रिफर्ड एंट्री एटलीस्ट टू बिगिन विथ. एंड अगर आपको मीन रिवर्शन ट्रेड्स लेना है तो देन दिस वुड बी अ वेरी गुड प्लेस 23,100 के आसपास. एंड यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हैं कि 23,100 के पे जब मार्केट आता है तो देन यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ अ बुल पुट स्प्रेड. बुल पुट स्प्रेड आप कर सकते हैं 1:1 रिस्क रिवॉर्ड का. बेसिकली आपको 23,100 का जो पुट है उसको शॉर्ट करना है एंड 23,050 का जो पुट्स है उसको बाई करना है. तो अगर मार्केट्स यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा तो देन डेफिनेटली आपको जो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड वाला जो पुट स्प्रेड है आपको पैसे दे देगा. बट अगर मार्केट इसको ब्रीच करके यहाँ पे आएगा देन यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ
23,000 स्ट्रैडल। 2 o'clock के बाद भी आप आके 23,000 का कॉल्स को आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिकवर वॉट एवर दैट स्प्रेड दैट इज गिविंग यू द लॉस। बट अगर आपको बुल पुट स्प्रेड इतना कंफर्ट नहीं देता है देन यू कैन डू OTM डेबिट पुट कॉल रेशियोज। डेबिट कॉल रेशियोज भी हम कर सकते हैं इसके आसपास। लेट्स से यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ अ डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न और सम सॉर्ट ऑफ अ एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है, तो देन यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग द पुट्स, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता है कि लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल्स, इतने बड़े कैंडल साइज है, तो मान लो कि आप 50 रुपए का भी आप ऑप्शन शॉर्ट करोगे तो दिस 50 विल बी वाइब्रेटिंग वायलेंटली बिटवीन 80 एंड 30। तो पहले 30 को आएगा, देन फिर से 80 को जाएगा, आपका स्टॉप लॉस काटेगा, फिर से आएगा। सो इट्स नॉट सच अ प्रूडेंट वे टू बी ट्रेडिंग बुलिश स्ट्रक्चर्स टुमारो, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यहाँ पे मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा ज्यादा पिकअप होने वाला है। यू कैन नोटिस दैट हर 5 मिनट का कैंडल जो है 50-60 पॉइंट मूव डेफिनेटली होने वाला है। सो इन दिस केस इफ एट ऑल आई वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ बुलिश स्ट्रक्चर, अगर मार्केट यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे मार्केट थोड़ा डब्ल्यू काइंड ऑफ अ पैटर्न बनाता है, तो देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज अ डेबिट कॉल रेशियो। यहाँ पे आपका डेबिट होना चाहिए ना कि क्रेडिट। थोड़े डेबिट होने से क्या होता है, मार्केट अगर थोड़ा तेजी से भी आपके डायरेक्शन में फेवर में मूव करता है तो फर्स्ट आपका जो प्रॉफिट में आता है एंड उसके बाद लॉस में जाना शुरू करता है। बट मान लो अगर आपने स्टार्टिंग में ही आप क्रेडिट लेके बैठे हो तो देन क्या होता है कि मार्केट थोड़ा भी तेजी से आपका फेवर में भी आता है, देन पहला आपका जो पोजीशन है वो रेड में जाएगा, बिकॉज आपका सेल लेग है वो 2 और 3 क्वांटिटी रहता है एंड आपका बाई लेग सिर्फ 1 क्वांटिटी रहता है। तो ज्यादातर आप थोड़ा मतलब नो क्रेडिट नो डेबिट काइंड ऑफ कॉल रेशियोज भी आप बना सकते हैं इफ यू नो हाउ टू मैनेज दोस थिंग्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, व्हेन द मार्केट्स आर एट 23,100, जब मार्केट 23,100 के आसपास आप ट्रेड कर रहा है एंड इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ बुलिश बायस, देन आप ये कर सकते हैं कि 23,200 का कॉल को आप बाई कर सकते हैं, 1 लॉट ऑफ 23,200 का कॉल को बाई कर सकते हैं एंड 23,350 का कॉल्स को आप 2 और 3 आप सेल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट पॉइंट द मार्केट हिट्स दिस लेवल। अगर 2 o'clock के आसपास आता है तो देन डेफिनेटली 3 लॉट्स आप ट्रेड कर सकते हैं, बट 2 o'clock के पहले आता है तो सिर्फ 2 लॉट करो। ऑफ कोर्स आपके पास थोड़ा बहुत डेबिट रहेगा, बट उस डेबिट को आप एज द डे प्रोग्रेसेस उस डेबिट को आप कवर कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। तो बुलिश ट्रेड सिर्फ यहां पे मुझे लेना चाहिए एंड कल मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स में नहीं लूंगा। ब्रेकआउट ट्रेड अगर लेना चाहता हूं तो देन आई वांट द मार्केट्स टू ट्रेड अबव दिस रेंज बिफोर 10 o'clock। 10 o'clock के पहले मार्केट इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए एंड मार्केट यहाँ पे 1 या 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। देन स्टार्ट थिंकिंग दैट ये जो लेवल जो बना है, मॉर्निंग का जो लो बना है, दैट विल बी द लो फॉर द एक्सपायरी। बट मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है एंड देन मार्केट यहाँ पे इतना इंट्राडे में ट्रैवल करता है, देन आई विल बी लुकिंग टू फेड दैट मूव। बेसिकली मीन रिवर्शन ट्रेड यहाँ पे मैं प्लान करूंगा। यहाँ पे मैं नेकेड कॉल्स को भी मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट पे, प्राइस एक्शन पॉइंट पे रिजेक्शंस आया हुआ है। सो बेरिश ट्रेड मुझे प्लान करना है तो आई विल सेल द कॉल्स एंड विद द फिक्स्ड स्टॉप लॉस एंड 2 बार री एंट्री भी मैं लेने के लिए तैयार रहता हूं। बट अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना है तो देन आई विल बी गोइंग फॉर डेबिट कॉल रेशियोज एट दिस लेवल। दिस वुड बी माय प्लान ऑफ एक्शन। अगर मार्केट 23,300 के आसपास ओपन होता है तो देन 23,300 का स्ट्रैडल अगर मुझे 200 पे मिलता है, देन ओनली आई विल बी इनिशिएटिंग 23,300 का स्ट्रैडल सो दैट I'll get the break-even points as 23,500 and 23,100. So this would be my plan of action for tomorrow. Apart from that, if at all we open with a big gap up or a big gap down, as usual, wait for the first 45 minutes candle. And depending upon the how big of this initial balance is, either trade the breakout or breakdown, or you trade the range of this candle. All right. I hope you guys have a decent expiry tomorrow. I'll catch you again after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.